Now we are going to solve some questions of differentiation. In the previous classes, we have initiated some questions with fundamentals of differentiation. In these classes, we solve some exercise questions, and these questions are as follow. There are three questions. The first is differentiate each of the following with respect to x. Means x के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है रूट tan x. लेट y इक्वल टू रूट tan x. Putting tan x is equal to t, this implies y is equal to root t and t is equal to tan x. Then dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. This is equal to d by dt t to the power 1 by 2 into dt d by dx. T stands for tan x. After differential of t to the power 1 by 2, we get half t to the power minus 1 by 2 into tan x का डिफरेंशियल हो गया sec square x. Then it becomes sec square x. This is equal to 1 by 2 into 1 by root t into sec square x. This implies dy by dx is equal to 1 by 2 root tan x into sec square x. Hence, dy by dx is equal to sec square x by 2 root tan x. This is the answer of this question. मीन्स हम लोग सपोज करें y इक्वल टू tan रूट x है. यह इक्वेशन 1 हो गया. एंड नाउ पुटिंग tan x इज इक्वल टू t. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू root under t and t is equal to tan x. This is x more clearly. Then dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. चेन रूल के हिसाब से according to chain rule dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. And further dt by d by dt t to the power 1 by 2. Here y stands for root t and root t का हम लोग वैल्यू क्या लेंगे t to the power 1 by 2. जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको करेंगे, रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लोग चेंज करेंगे तो यह रूट का मीनिंग हो जाता है पावर 1 by 2 इंटू 1 d by dx tan x which stands for t means t के लिए यह आता है. And this is equal to after differential t to the power 1 by 2 we get 1 by 2 t to the power minus 1 by 2. बिकॉज इसमें जो पावर रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है और जो पावर है उससे 1 माइनस होता है. तो
टी टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया और टी टू द पावर 1/2 -1 करेंगे तो देन इट बिकम्स -1/2 एंड इनटू tan डिफरेंशियल ऑफ tan x। तो tan x का डिफरेंशियल कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√t इंटू sec स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल टू 1/2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। Hence dy by dx is equal to sec square x by 2 root under tan x. This is the answer of this question. Now solution of question number 2. Now we solve the question number 2. Let y is equal to 2x square minus 3x plus 4 to the power 5. Equation 1. Putting 2x square minus 3x plus 4 is equal to t. This implies y is equal to t to the power 5 and t is equal to 2x square minus 3x plus 4. Therefore, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. This is equal to d by dt t to the power 5 into d by dx 2x square minus 3x plus 4 means according to composite function rule, means according to chain rule, dy by dx equal to dy by dt into dt by dx. This is equal to d by dx t to the power 5 into d by dx 2x square minus 3x plus 4 means y का जो हो गया वह t to the power 5 हो गया। t is t जो है वह y जो है t का फंक्शन हो गया। तो dy dt t टू द पावर 5 इंटू t क्या है, t फंक्शन हो गया x का। तो x का जो एक्सप्रेशन है वह इसके अंदर आएगा। तो देन वी डिफरेंशिएट इट, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy dt t to the power 5 becomes 5t to the power 4 into फिर डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो यह हो गया 4x माइनस 3 और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो 4x माइनस 3 हो गया। 4 जो है कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5 और t को x के फॉर्म में डालेंगे, क्या है तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 4 हो गया इंटू 4x माइनस 3 हो गया। Therefore dy by dx इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 4 x माइनस 3 इंटू कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। Sir, this is the solution of the second question and further we proceed for the solution of the third question. Now we proceed for the question number 3. For that, let y equal to root under 1 plus sin x by 1 minus sin x means इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को।
तो फॉर दैट वी फर्दर प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो फॉर दैट y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, बिकॉज 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दैट इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो आप रूट हटने के बाद में यह कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स। एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। This implies y इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स हो जाता है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टैन एक्स मीन्स y इक्वल टू हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स मीन्स 1 बाई कॉस एक्स कितना हो जाता है सेक एक्स हो जाता है और साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स हो जाता है। Therefore dy by dx equal to d by dx sec x plus tan x. This is equal to sec x का डिफरेंशियल कितना होता है sec x इंटू tan x और tan x का डिफरेंशियल कितना होता है यह होता है sec स्क्वायर x। This is equal to sec x को कॉमन कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा tan x प्लस sec x। Hence dy by dx is equal to sec x in bracket tan x plus sec x. This is the solution of this question. Proceed for the next question. Now we start. The next question is question number 4. We have to differentiate sin 5x into cos 3x. Let solve this question. Let y equal to sin 5x into cos 3x. This is equal to 1 by 2 into 2 sin 5x into cos 3x. This is equal to 1 by 2 into in bracket 2 sin 5x into cos 3x equal to 1 by 2 into 2 sin 5x cos 3x। इसको हम लोग नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग साइन 2 साइन a cos b इक्वल टू कितना होता है
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मीन्स यह फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको रिमेम्बर करें कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, यह ट्रिगोनोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन प्रोसीड फर्दर, देन इट बिकम्स साइन ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x और प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x। यह कितना हो गया 1/2। यह हो गया हम लोग को साइन 8x, साइन 8x प्लस साइन 2x। Therefore dy by dx, अब dy by dx निकालेंगे। मीन्स यह तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे। तो dy by dx इक्वल टू 1/2 को बाहर करेंगे, कोफिशिएंट है, एंड d by dx तो यह हो गया कितना साइन 8x प्लस साइन 2x। दिस इज इक्वल टू 1/2। साइन 8x का डिफरेंशियल कितना होगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, मीन्स साइन 8x बिकम्स कॉस 8x इंटू 8। यह हो गया कॉस 8x इंटू 8 प्लस साइन 2x का डिफरेंशियल कितना हो गया cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2। इसको मिटा दें, इससे कोई मतलब है नहीं अब आगे। दिस implies dy by dx इक्वल टू 1/2 और 2 कॉमन करेंगे दोनों में से, तो 2 कॉमन करेंगे तो इंटू 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 cos 8x, 4 cos 8x प्लस cos 2x प्लस cos 2x। तो 2 कट गया, तो therefore dy by dx इक्वल टू हो गया 4 cos 8x प्लस cos 2x। आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, solution given y equal to sin x plus x square by cos 2x, this is equal to sin x plus x square into tan 2x, means 1 by cot 2x is equal to tan 2x हो जाता है। Since cot tan x is equal to 1 by cot x, यह होता है, हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, इसके अनुसार यह हो गया साइन
x plus x square into tan 2x. Therefore dy by dx is equal to dy dx in bracket sin x plus x square into tan 2x. अब यह u इंटू भी का फॉर्म हो गया, इसमें साइन x प्लस एक्स स्क्वायर को u लेंगे और tan 2x को भी लेंगे. दिस स्टैंड्स फॉर u एंड दिस स्टैंड्स फॉर v. दिस इज इक्वल टू u इंटू v में क्या होता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे. तो देन इट बिकम्स साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस tan 2x इंटू डी वाई डी एक्स साइन x प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ tan x कितना होता है, डिफरेंशियल ऑफ tan x हो गया सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर 2x इंटू 2. यह हो गया एक ब्रैकेट में. अब प्लस tan 2x और डिफरेंशियल ऑफ साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा. दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू ना हो गया 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस cos 2x प्लस cos x plus 2x into tan 2x. This is the answer. This is the solution of this question. That's all. Further, for the more question, you may follow the books of R.S. Agrawal and K.C. Sinha. And in next class, we'll start the next topic, differentiation of exponential and logarithmic function. That's all. Thanks all of you.